Hello students, we are doing the chapter first relation and function. Now we are going to start the next topic, that is function. Function. What are functions? Simple, polynomial, constant term, logarithm, all are your functions. We will discuss special types of the functions here. Function can be defined as from x to y. Function x to y such that f of x is equals to y, where x is from capital X, y is from capital Y. This is your domain and this is your range. So this is your function. Now we will discuss types of function. There are mainly two types. One is one-one function, second is on-to functions. What are one-one functions? If every element has different images, this is element and this is image. Every element has different images, then this is called your one-one function. For example, we will discuss with the diagram. This is your x set, this is your y set. If I will write 1, 2, 3, 4, 5 here and here A, B, C, D, E. Image of 1 is A, image of 2 is B, image of 3 is C, image of 4 is B, image of 5 is E. Now see, every element has different images, so we can call it as a one-one function. If one element has, two elements has same images, then it is not one-one function. For example, if I will draw like this, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. 1 की इमेज A, 2 की इमेज भी A, 3 की B, 4 की E, 5 की C. अब 2 एलिमेंट की सेम इमेज है तो इसको हम बोलते हैं many one. This is your one-one function and this is many one function. Many element for 2 element has one image. So this is your many one function. Clear? Next is on-to function. What are on-to function? If all the elements in the range has pre-image. अब यहाँ पे देखो A की pre-image 1, इसकी 2 भी है, B की 3, C की 5, D की कोई pre-image नहीं है. These are free element. So this is not on. यहाँ हर एलिमेंट की pre-image है, कोई एलिमेंट फ्री नहीं है. It means this is a on-to function. Every element in the domain, in the range has pre-image. That is called on-to function. Clear? Clear हो गया one-one and on-to function. one-one function को देखो क्वेश्चंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. टू एलिमेंट्स ले लिए हमने x1 एंड x2 फ्रॉम x. अगर जैसे x1 की इमेज fx1, fx की दोनों की सेम इमेज होनी चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन पे अगर हमें पूछा गया प्रूव दैट दिस इज one-one, तो हम ये क्राइटेरिया चूज करेंगे कि 2 एलिमेंट लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि दोनों एलिमेंट की इमेजेस भी क्या है, सेम है. ठीक है, प्री ऑन-टू के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे हम पीछे से डोमेन इस रेंज से और प्रूव कर देंगे कि इसकी कोई ना कोई प्री इमेज मतलब एग्जिस्ट कर, कोई ना कोई एक्स उसके लिए एग्जिस्ट कर. इट मीन्स टू से दिस इज ऑन टू फंक्शन. क्लियर? अब आपको ऑन वन-वन, ऑन टू, मैनी वन तीनों क्लियर है. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, exercise 1.2 on your page number 10. Show that the function from R to R
defined by fx is equals to 1 by x is 1 1 and on 2, where r is the set of all non-zero real numbers. Non-zero. Is the result true if the domain r is replaced by n with codomain being same as r? Firstly, we have to prove this is 1 1 and on 2 function. See how to prove this function. This is the function from r to r, fx is equals to 1 by x. For 1 1, we will choose two elements x1, x2 from this first term. So, firstly we will find fx1. Fx1 is 1 by x1. Fx2 is 1 by x2. Fx1 equals to fx2. 1 by x1 equals to 1 by x2. By taking the reciprocal both sides, x1 is equals to x2. अगर दोनों की इमेजेस सेम है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि दोनों एलिमेंट्स क्या है आपस में इक्वल ही है. इट मीन्स टू से f is 1. Now we have to prove this is the onto function. Onto function के लिए क्या करेंगे, कोई y एलिमेंट लेंगे. y एलिमेंट कहाँ से लेंगे, सेकेंड ऑप्शन. तो उसके लिए देखते हैं कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं. y r से है तो मतलब y क्या होगा हमारा, सीधा लिखो पहले fx is equals to y. दिस इज 1 by x equals to y. तो y कितना आ गया हमारा, x is equals to 1 upon y. तो अगर कोई y यहाँ पे पुट करेंगे, हम कुछ भी हमने y यहाँ से लिया है, r से कुछ भी पुट करो तो वो x में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, y की जो मर्जी वैल्यू पुट करो x एग्जिस्ट कर रहा है. और x कहाँ से है हमारा, रियल नंबर फर्स्ट टर्म में से. सो फॉर एवरी y belongs to r, there exists at least one r belongs to first r such that f of x is equals to y. So f is on. क्लियर है. ये भी रियल नंबर्स है, उस साइड भी रियल नंबर्स है. y की जो मर्जी वैल्यू पुट करो 1 2 3 और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, एनी इरेशनल नंबर, तो उसका पुट करके इधर जो भी वैल्यू आएगी x की वो भी तो एक रियल नंबर ही होगा. तो वी कैन से फॉर एवरी y belongs to r there exists x belongs to r such that fx equals to y. So f is onto. ये आपने लिखना ही लिखना है. क्लियर. तो ये हो गया हमारा प्रूफ 1 1 onto के लिए. इसके बाद इन्होंने पूछा है इफ डोमेन जो है फर्स्ट वाली वो रिप्लेस कर दे n के साथ, n to r, तब भी ये रिजल्ट ट्रू होगा. नो, रिजल्ट ट्रू नहीं होगा. क्योंकि यही देख लो, r हमने y हमने पीछे से लिया. अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 लेके चलूं तो x क्या आएगा 1 by 2. 1 by 2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं है, वो क्या है, एक रैशनल नंबर. वो रियल में तो आता है, नेचुरल में नहीं आता. तो हम इसकी काउंटर एग्जांपल दे देंगे. 4 y is equals to कुछ भी नंबर ले लो, 1 2 2 ले लो, चलो x is equals to 1 by 2. x जो क्या है, does not belongs to n. So f is, so result is not true. जैसे जैसे हमारी डोमेन या रेंज वेरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट भी वेरी करेगा. क्लियर. जो रियल नंबर था उसके लिए तो ट्रू था, बट जो नेचुरल नंबर के लिए उसके लिए ट्रू नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया. क्लियर. सो द रिजल्ट इज नॉट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, check the injectivity and surjectivity. What is injectivity? Injectivity is your 1 1 function. Surjectivity is onto function. नंबर फंक्शन गिवन है, आपने चेक करना है 1 1 एंड onto. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, taking the first part, function is defined from n to n, natural number to natural number. fx equals to x. तो
तो आपने ये देखना है कि अगर आप x की दो डिफरेंट वैल्यूज लोगे तब क्या उनके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। हम जनरल एग्जांपल से करके देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा 1। x की वैल्यू 2 पुट करूं कितना आएगा 4। 3 पुट करूं तो कितना आएगा 9। तो हर वैल्यू के लिए हमारा डिफरेंट आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज 1 1 मीन्स टू से इंजेक्टिव फंक्शन। हमें वैल्यू सारी पॉजिटिव लेनी क्योंकि वहां पे हमारा क्या है नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे f of x1 equals to f of x2 for every x1 equals to x2. So f is 1. अब हमने on2 चेक करना है। on2 के लिए क्या करेंगे, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो कोई एलिमेंट ले लो यहां से y कुछ भी लेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 2, देन f of x equals to x square, x square is equals to y, क्योंकि fx क्या है y। अब मैंने y कितना लिया 2, तो x कितना आ गया √2। बट ये वाला x तो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर रहा, दिस इज अ इररेशनल नंबर। सो f is not on। क्लियर। तो काउंटर एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि वो 1 1 on 2 है या नहीं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका। अब हमारे पास फंक्शन सेम है बट उसकी डोमेन चेंज हो रही है, z टू z, इंटीजर टू इंटीजर। फंक्शन हमारा वही है f(x) इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट लेके देखो कि उनकी डिफरेंट इमेज आ रही है। अब इंटीजर्स है, इंटीजर्स है तो आप नेगेटिव नंबर भी काउंट करोगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी 1 1 की इमेज क्या आएगी 1, -1 की अगेन 1। तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। इट मीन्स टू से f is not 1 1, not इंजेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव टू चेक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए आप सेम कर सकते हो। यहां पे आप ले लो नेचुरल नंबर की जगह z, 2 भी तो इंटीजर ही है, तो क्या आ गया हमारा इररेशनल नंबर, वो तो z में है ही नहीं है। तो n की जगह आपने क्या लिखना है, सिंपल z लिखना है। तो f is not on 2। सेम प्रोसीजर, सेम एग्जांपल यू कैन गिव। नेक्स्ट थर्ड पार्ट सेम, रियल टू रियल, खुद से चेक करोगे। फोर्थ फिफ्थ अगेन आप अपने आप करोगे, हो जाएंगे ये सिंपली। तो 1 1 on 2 ही चेक करना है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट इज prove that the greatest integer function, firstly you have to should know what is greatest integer function. Greatest integer function is denoted by square bracket। जैसे मॉड है तो लाइंस लगा के शो करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्क्वायर बॉक्स में लिख दिया। दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉड में क्या होता था, नेगेटिव टर्म सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसमें क्या आएगा, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 1.2 तो आंसर क्या आएगा ओनली 1, डेसिमल रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं लिखूं 1.9 तो इसका आंसर 2 नहीं क्या आएगा 1 ही आएगा, हमने सिर्फ डेसिमल रिमूव करनी है। चलो इसका देखो -2.3 तो क्या आएगा आंसर -2। नो, हमने क्या किया था, इसमें प्रीवियस वैल्यू लिखी थी 1.9 के पहले क्या आता है 1, तो -2.3 है, इससे पहले क्या आएगा -3। नंबर लाइन पे चेक कर लो, 2.3 राइट साइड है, उसके लेफ्ट साइड वाला नंबर हमने लिखा। क्लियर। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R2R given by this is neither 1 1 nor on 2। 1 1 नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कितने सारे एलिमेंट्स 1.2 1.3 1.4 सबकी इमेज क्या आ रही है 1। सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ऑन 2 भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो इमेज है वहां पे हमारे पास क्या है R2R। इसमें तो काफी सारे रियल नंबर आ जाएंगे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर
नंबर्स हमारे सारे क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। यहाँ तो रियल नंबर्स आए नहीं, जैसे √2 अगर मैं लिखूं, √2 तो किसी भी वैल्यू का आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर्स हमारे सारे क्या होंगे, इंटीजर्स, वो डेसिमल, रैशनल या इरेशनल फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने इसमें काउंटर एग्जाम्पल देनी है। मैं लिख के समझा देती हूँ कैसे देंगे आपने काउंटर एग्जाम्पल। फंक्शन हो गया हमारा रियल टू रियल, डिफाइंड बाय दिस। सबसे पहले आप लिखोगे f ऑफ 1.2, तो क्या आंसर आ गया 1। फिर लिखोगे 1.9, क्या आंसर आ गया 1। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है सेम इमेज, सो f इज नॉट 1. फिर सब्जेक्टिव के लिए फॉर y इज इक्वल्स टू कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ले लो, 1.2 ही ले लो, y इज इक्वल्स टू दिस हैज नो प्री इमेज, किसी भी x का ये आंसर नहीं है, इस y के लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता, सो दिस इज नॉट ऑन, so we'll write f is not on. क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ अपने आप करोगे, वो मॉडुलस क्या है, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का था, वो मॉडुलस क्या है वो अपने आप करोगे। उसमें भी यही शो करना है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। 1 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 की इमेज भी 1 है, -1 का मॉड हटाओगे तब भी उसका आंसर 1 आएगा, नॉट 1 1। ऐसे आपने ऑन 2 देनी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन, शो दैट सिग्नम फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे जो डिफरेंट होते हैं, ये वाले, जैसे ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू हुआ, लेस देन हुआ, तो अलग अलग इमेजेस आती हैं उनकी, तो उनको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। जो फंक्शन डिवाइड हुआ हो, 2 या 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड हुआ हो, उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ये तो क्लियर ही है। देखो प्रूफ कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज योर सिग्नम फंक्शन R to R। अगर आप उसको फिगर से, जैसे मैंने डायग्राम लगा दी थी, वैसे भी कर सकते हो, समझ लो इसको। सारे रियल नंबर्स लिख लो थोड़े से, मतलब 1 2 -1 1/2 3 √3। सिमिलरली यहाँ लिख लो 5 7 1 9 -2 3/5, रैंडमली लिख लिए √2। रैंडमली कोई भी नंबर लिख दो, क्योंकि इधर भी सारे रियल नंबर्स हैं, इधर भी रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स भी होंगे, फ्रैक्शन भी होगा, इरेशनल भी होगा, सेम मैंने यहाँ लिख लिया R to R। तो अब हमने 1 1 चेक करना है, 1 1 है या नहीं। अब इन्होंने बोला है x की कोई भी ग्रेटर वैल्यू लो, ग्रेटर मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू लो, सबके लिए आंसर क्या आएगा 1, फिक्स आंसर। अगर मैं f 1 लूं तो उसका आंसर 1, अगर 2 लूं तो उसका आंसर भी 1, 3 लेंगे उसका आंसर भी 1, सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1, 1 की वैल्यू भी 1, 2 की वैल्यू भी 1, 3 की वैल्यू भी 1, तो many 1, दिस इज many 1 फंक्शन। क्लियर। सो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज many 1 फंक्शन। अब हमने क्या चेक करना है, ऑन 2। ऑन 2 में देखो हमारे पास इमेजेस 3 है, 1 0 -1। 7 की प्री इमेज क्या आएगी, कुछ भी नहीं। देयर इज नो प्री इमेजेस ऑफ 2 3 5 7, देयर इज नो प्री इमेजेस ऑफ दिस एलिमेंट। आपने क्या लिखना है 4 y, यानी y फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 2 3 5 7 √2, कुछ भी ले लो जो R से है, हैज नो प्री इमेज, so f is not on। जहां पे आपको बोला लो कि शो करो ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिंपल एक काउंटर एग्जांपल देनी है, ठीक है जी, कि वो हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है। सिक्स्थ है, a सेट गिवन है, b सेट गिवन है, फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे रिलेशन की फॉर्म में गिवन है 1 4 2 5 3 6, मतलब 1 की इमेज, ऐसे बना लो इसको। ये a सेट हो गया 1 2 3, b सेट हो गया 4 5 6 7, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5,
3 की इमेज 6, ठीक है। हमने शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। क्लियर ही है, एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, सो दिस इज 1 1 फंक्शन। अब अगर यहाँ पे साथ में ऑन टू पूछते तो ये ऑन टू होता? नो, क्योंकि जो 7 है वो फ्री एलिमेंट, इसका किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज 1 1 बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, बट दिस इज नॉट ऑन टू बिकॉज 7 हैज नो प्री इमेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपने आप करो। 8th बता रही हूँ मैं। A and B are two sets, A क्रॉस B, B क्रॉस A, दिस इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कौन से होते हैं? जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। देखो कैसे लिखोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 सी, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन करेंगे A क्रॉस B, B क्रॉस A, f of a comma b is equals to b comma a एलिमेंट कैपिटल A से या b एलिमेंट कैपिटल B से आ रहा है, तो ये बाइजेक्टिव है, ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली नहीं होगा, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, a1 b1 या a ऐसे ले लो a b c, दो एलिमेंट ले लो, ये a क्रॉस b। तो f of a comma b is equals to f of c comma b। a कॉमा b की इमेज क्या आएगी? b कॉमा a, इसकी क्या आएगी? b कॉमा। तो अब हमने क्या कह दिया कि दो एलिमेंट्स लिए, दोनों की प्री इमेज निकाली तो वो आपस में इक्वल ही होंगे। कोई भी लोगे तो वो, अगर उनकी इमेजेस इक्वल है तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो f इज 1 1। अब ऑन टू प्रूव करना है, कोई भी ले लो आप, y c कॉमा d ले लो, b comma a belongs to b क्रॉस a, तो उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज तो होएगी। ये किसके इक्वल होगा? कुछ भी ले लो, 2 क्रॉस, अगर आप यहाँ पे लोगे 2,3 तो वो किसकी इमेज होगी? 3,2 की। 7,2 लोगे तो वो किसका होगा आंसर? 2,7 का। तो उल्टा करके लिख सकते हैं हम। तो सारे पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, a क्रॉस b में भी और b क्रॉस a में भी। सो वी कैन से फॉर एवरी b comma a belongs to b क्रॉस a, there exists a comma b belongs to a क्रॉस b. So f is onto function. F is 1 1 and onto, so we can say f is a bijective function. Next question number 9th, solve it by yourself. 10th also. Next we will do question number 11th. Function r to r fx equals to x raised to power 4. चूज अ करेक्ट ऑप्शन। हमने 1 1 ऑन टू चेक करना है इसका, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। पावर 4 आ गई, तो पहले बताओ रियल टू रियल, तो ये 1 1 होगा या नहीं? 1 का आंसर 1, -1 का 1, तो दिस इज नॉट 1 1। सबसे पहले तो देखो, ए ऑप्शन है 1 1 कट गया, सी ऑप्शन है 1 1 वो भी कट गया। तो अब हमारे पास बी और डी ऑप्शंस रह गए। बी क्या है? मैनी 1 या फिर नाइदर 1 1। तो इसके लिए हमें ऑन टू चेक करना पड़ेगा। अब हमारे पास बी और डी ऑप्शंस रह गए। बी में ऑन टू है, डी में नॉट ऑन टू है, तो ऑन टू चेक कर लो। ऑन टू कैसे चेक करोगे? कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आप 2 ले लो, 2 ले लो। 2 किसी का आंसर है या नहीं? चेक करो 2 के लिए। कैसे चेक करोगे? 4 पावर लेके उसकी कैसे चेक करेंगे? कोई भी सिंपल समझो पहले इसको। कोई भी हम जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज ले, आंसर क्या आया? पॉजिटिव। क्या कोई भी नंबर पुट करने के बाद नेगेटिव आंसर आएगा? नो। 4 पावर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो -2 -3 नेगेटिव numbers has no pre-image. So f is neither 1 1 nor on. मीन्स से हमारा इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
क्लियर है। नेक्स्ट 12 है, वो अभी ऐसे चेक करना है 1 1 on 2 है या नहीं। क्लियर है, ये तो 1 1 होगा। आप अपने आप चेक करना कि 1 1 on 2 है या नहीं, देन चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर। सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 रिलेटेड विद टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर इसका कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आपको कंसेप्ट क्लियर है 1 1 on 2, देन यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।